Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you, ma'am? Good morning. How's everyone? Everyone is fine? Yes, I'm ma'am. pretty well. I am good, ma'am. That's nice. Good. Okay, so today we are going to start with again a new topic. Guys, actually there is some technical issue with the application. Actually उस वजह से videos में भी problem जा रही है, and then yesterday I could not share the PDF also of pronouns. तो actually ऐसा बोला गया है कि आज देखते हैं उसे complete प्रोसेस को रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ. सो जो टेक्निकल टीम है वो थोड़ा सा उस पर काम करके तो फिर आज देखिए मैं आपको सारे वीडियोस, अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो सारे वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगी. इसके अलावा जो हमारा प्रोनाउन का जो शीट है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, मैंने वो अपलोड नहीं किया है. शीट्स तो सारी अपलोड हो रही थी, लेकिन कल शीट अपलोड अभी नहीं हो रही है, तो मैं आपको वो वाली शीट भी आज अपलोड कर दूंगी. मैंने सोचा तब तक मैं आपको एक नया टॉपिक, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको नया टॉपिक आज स्टार्ट करती हूँ. फिर आप प्रोनाउन का टेस्ट जो है वो आज मैं आपको दूंगी. टेस्ट भी मैं आज आपको दे दूंगी प्रोनाउन वाला, तो आप लोग टेस्ट कीजिएगा प्रोनाउन वाला. टेस्ट करने के बाद में कोई भी डाउट होता है पहले शीट शेयर कर दूंगी ताकि आप उसे आराम से पढ़कर फिर टेस्ट आप लोग दे पाए. टेस्ट दीजिएगा. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है? ओके ठीक है मैम. ओके मैम. Okay, ma'am. Okay, ma'am. nice. चलिए, today we are going to start with some kind of topics जिसमें कि आज 2 सेक्शन होंगे हमारे. The first section would be like I'm going to teach you new topic today, जिसमें हम लोग आज एक्शन वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं. एक्शन वर्ब के साथ साथ में I am going to teach you some kind of स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, जिसमें आज हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले इफ यू रिमेम्बर, कुछ लोग हैं जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं और जिनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, तो आज सबसे पहले हम लोग अपने परफॉर्मेंसेस पे ध्यान देंगे. परफॉर्मेंसेस कंप्लीट करने के बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने टेंसेस की तरफ. ठीक है? सो एनीवन कौन है जिनका वो लोग अपने आप रेज हैंड कर सकते हैं जिन लोगों ने एक्चुअली प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दिया है. इट्स ओके देविका, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस नैन्सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है देविका, कल की क्लास में अपलोड कर दूंगी so that you can watch that. Okay? Hello. हेलो, हाय नैन्सी. बेटा बोलते वक्त Hello, ma'am. हम लोगों को अपना कैमरा ऑन रखना है. Yes, ma'am. परफॉर्मेंस कीजिए तो हम कैमरा ऑन रखेंगे. सच अ ब्यूटीफुल गर्ल. Thank you, ma'am. Okay, should we start? Okay, ma'am. Okay, after A very good. just a second, beta. After Nancy, Ritik will perform as Ritik wants to perform. Okay. You can. Okay, can I start? Yeah. Okay. A very good morning, ma'am, and everyone. My name is Nancy Visukarma. Today's my topic is my hometown. So I'm start about my topic. I belong to Katni. So I'm starting. The place where I belong is a wild area and lots of ponds, river, lots of ponds and river here. And many people come from far and wide to see animals. There are lots of fields here. As we go to the fields,
there is lots of relaxed and greenery. You like guys just you come to heaven just like you feel that. Okay, what else can I say about my city place that feels so much here as if we have come to heaven, and all of you guys will come from around here. The place here is very lovely and looks great. That's all I had to say about my city. Thank you so much. Okay, that's wonderful. Katni is near to Jabalpur, so the beauty of Narmada also can be seen from here, correct? Okay, that's nice. So again, a very nice performance. Nancy, what I believe that you should always focus when you are talking about your hometown. You should think that we have to be very much, elaborated. हमको जानबूझ के ज्यादा बड़ा वाला वर्णन करना चाहिए, so that we can actually, express ourselves more. ज्यादा टाइम मिले हमको बोलने का, परफॉर्मेंस देने का. Generally it happens आप लोगों को we give little time to speak. So इसमें क्या करना होता है that आपको और ज्यादा बोलना है, so that आप लोग बोलकर you can just improve your fluency, more speaking, that means more learning. Okay, तो टॉपिक को थोड़ा सा जानबूझ के बड़ा बनाएं. Okay, ma'am. Next time I will long my topic. Sure. Okay, next is Ritik. Let us talk to Ritik. Yes, Ritik, beta, you have to open your mic and camera. Yes. Can we start? आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋतिक. I think remove your headphones, like wire, remove your wire. There is some problem with the mic. Now speak up. Ritik, do not use headphones. है ना, use without headphones, so that आपकी आवाज. Yeah, speak up. Okay, ma'am, I speak. See, you are now I am audible. belongs. Am I audible, ma'am? हाँ, you are audible now. Okay. Can I start? Yes. I am belong from Sukalavas village. My village is very small, but it is very greenery. My village is very greenery than many surrounding areas. We can listen hear birds creeping because our village is very natural. Our village is surrounded to mountain from east and west side. I have one big temple in my village who that Sri Radhakrishnan temple. Okay, ma'am. Wow, that's wonderful. Your village in this city, which Thanks, ma'am. state? Which state it is from? State, ma'am, Rajasthan. आपके यहाँ तो बहुत सारे मोर होंगे. राजस्थान has a lot of peacocks. Ma'am, I'm not belong city area. I'm belong village area. अच्छा, मतलब मोर, मतलब मोर बात करी. मोर जानते हैं ना? There is a India's अच्छा, nest. वो peacock. हाँ, मोर. Yes, peacock. ma'am. I है know. ना? हाँ. Yes, ma'am. आपके यहाँ बहुत सारे मेरे मोर यहाँ पर होंगे. अभी आसपास में भी है. हाँ, Yes, exactly. ma'am, बहुत सारे हैं. Exactly. क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा मोर होते हैं. मैं आपको उनकी आवाज भी सुना सकता हूँ. हाँ, अभी मैंने सुना, इसलिए मैंने बोला.
थोड़ा सा अभी आपने जैसे बोला उससे पहले आवाज आया तो मुझे याद आया कि राजस्थान धौलपुर की तरफ का एरिया उस थोड़ा आगे जाए तो देयर आर लॉट ऑफ पिकॉक्स, है ना, बहुत सारे मोर मिलते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्चुअली आई बिलोंग टू, वैसे मैं Yes, भोपाल ma'am. से हूँ बट माय फादर बिलोंग्स टू मुरैना, आप जानते होंगे। आगरा से ठीक पहले पड़ता है, धौलपुर और आगरा के भी पहले पड़ता है। तो वहां पे हमारे यहाँ भी मुरैना में कई मोर हैं, बहुत मोर है, पूरा एरिया ही रिजर्व करके रखा है मोरों के लिए। और ये जो पिकॉक्स है ये वहां से लेकर राजस्थान तक फैले हुए हैं। वहां पे शिकार भी Yes, ma'am. बंद है Yes. ना, मोरों का शिकार भी बंद है, कोई नहीं मार Well, सकता, है ना, all right. All इलीगल right. है। एग्जैक्टली। Yes, ma'am. चलिए, वेरी नाइस लिसनिंग टू यू, वेरी Exactly. गुड बेटा। इसमें एक चीज करेक्ट कर लीजिए, Okay, ma'am. Thank. करेक्शन है आपको। Yes, ma'am. करेक्शन है जब आप बोलते हो आई एम बिलोंग टू, तो बोलना है आई बिलोंग टू, एम नहीं है। No, ma'am. मैंने from बोला है. मैम मैंने from बोला था. ठीक है, ठीक, ओके, तब ठीक है। नेक्स्ट है, आपने बोला माई विलेज इज ग्रीनरी, तो उसको अपन बोलेंगे माई विलेज हैज ग्रीनरी, Okay, ma'am. क्योंकि Has मेरा greenery. मेरा मेरा जो गांव है वो हरियाली नहीं है, गांव में हरियाली है है ना। तो अब हम Okay, है ma'am. तो है Okay, सीख ma'am. चुके हैं, तो उसको करेक्ट करना है, ठीक है। Okay, ma'am. I'm understood. Very nice. It is a nice performance by you. All the best. Thanks, Okay. ma'am. Now, अच्छा, Ritik is done. Nancy has been done. Anyone else who is still remaining? Everybody is completed, है ना? Now, if you have not done it, tell me. I will give you chance to perform today. From today, whatever topics I'm giving, try to perform it by today itself, by tomorrow itself, perform in the given deadline also, so that the topics will be into your mind. You can actually focus more into speaking. सभी लोग वो सबके साथ में जब वो टॉपिक चलता है तो इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था कि आप लोग जो है वो टॉपिक्स को डिले नहीं करें, कोशिश करें जिस दिन प्रिपरेशन है उसी दिन करके उसे खत्म करें, ठीक है। नाउ लेट अस बिगिन टू अ न्यू टॉपिक। आज मैं आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक्शन वर्ब्स के बारे में ज्यादा बात नहीं की है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड अबाउट एक्शन वर्ब्स। एक्शन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होता है एक्शन, कौन कौन सी एक्शन वर्ब्स होती हैं और इसे हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बनाना चाहती हूँ। ये जो चार्ट है ये आलू की चार्ट नहीं है, ये है टेंस चार्ट, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी, ट्रिक्स टू लर्न टेंसेस। टेंसेस को समझने के लिए एक देयर इज अ ट्रिक, एक्चुअली उस ट्रिक को समझने के लिए हम लोग ये चार्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आई एम गोना मेक अ चार्ट फॉर यू। इन द चार्ट हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिक फॉलो करने वाले हैं और उस ट्रिक से आपको टेंसेस समझ में आने लगेंगे। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, गिव मी अ मिनट। Just a second.
Please just a second. My file is actually opening. Yeah, it is opened now. Okay, so here is the file. Okay, I believe कि मेरी screen आपको visible होगी. Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. So here we are going to have a wonderful chart. इस चार्ट को आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चार्ट ऑलरेडी आपको मिल जाएगा. हाँ, लेकिन आप लोग चाहें तो एक रफ आइडिया अपने नोटपैड पर आप भी ड्रॉ कर सकते हैं मेरी तरह. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक मी. ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं टेंसेस के टाइप्स ऑफ कोर्स मेंशन करूंगी. टेंसेस के टाइप्स आप लोग जानते हैं. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहाँ पर मैं टेंसेस को ही मेंशन करने वाली हूँ. यू नो दैट वी हैव 3 मेजर टेंसेस. 3 टेंसेस होते हैं हमारे पास में. हम बात ही 3 टेंसेस में करते हैं, है ना. हमारा जो टाइप होता है, हमारा पहला जो टाइप है वो हम प्रेजेंट सिंपल, इसको हम दूसरे शब्दों में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट. फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन पढ़ते हैं. फिर हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की. एक्चुअली मैं यहाँ से प्रेजेंट हटा देती हूँ क्योंकि प्रेजेंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. यस, तो हमने पहला जो टेंस पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल टेंस, इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं. बताऊंगी क्यों कहते हैं. फिर हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस और उसके बाद हम पढ़ते हैं परफेक्ट. ये टेंसेस के नेम्स हैं. और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसका मतलब है आप 3 टेंसेस में तो बात करते ही हैं. आप हम सब स्पीकर्स हैं ना, तो हम सब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तो बात करते ही हैं. लेकिन हम सेंटेंस को अलग अलग घुमावदार तरीके से यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से, है ना. तो उन सबको हम लोग 4 तरीकों में डिवाइड कर देते हैं. पहला जो हमारा तरीका है दैट इज कॉल्ड सिंपल या इंडेफिनिट. सिंपल को हम सामान्य कहते हैं, लेकिन इंडेफिनिट को हम कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित काल. अब इसका मतलब होता है जो डिसाइडेड नहीं है. इस टेंस के जो काम होते हैं ना, वो एक काम नहीं करता है. ये जो टेंस है ना, पहला वाला जो टेंस है, ये तीनों टेंसेस में कई काम करता है, मतलब एक से ज्यादा काम करता है. आप बाकी टेंसेस को देखिएगा, उनके काम निश्चित हैं. एक काम करेंगे या 2 काम करेंगे, निश्चित है. इस टेंस में हम कई एक साथ कई फंक्शंस देखते हैं. इस टेंस में मतलब हम 3 से 4, 5 फंक्शंस देखते हैं. एक से निश्चित नहीं है, इसके कई फंक्शंस होते हैं. इसलिए इसको अनिश्चित काल कहते हैं, जिसका काम निश्चित नहीं है ना. ये चीज ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पर हम सिंपल और इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे. वैसे हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं. तो ये 3 हो गए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 3 हो गए. 3 and 3 6 हो गए. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ऑफ कोर्स 9 हो गए.
present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Yes, ये हमारे मिलाकर हो गए 12 tenses. There are 12 major tenses in English, जिसमें 3 तो present past future होते ही हैं, लेकिन जब हम उनके 4 types पढ़ते हैं तो 4 3s are 12 होता है. Basically there are 12 tenses. इनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इनकी वर्ब को समझिए. अब आप ये मान के चलें कि जो एक्शन वर्ब होती है, चाहे वो प्ले हो, गो हो, कम हो, या जितनी भी एक्शन वर्ब्स होती हैं, इनकी वर्ब शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें इनका हिंदी मीनिंग और इनके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म दिए हुए हैं. हम लोग रोज 10-10 वर्ब भी अगर पढ़ते हैं, सो वी आर एबल टू लर्न देम, है ना. तो ये जो वर्ब्स होती हैं, ये बेसिकली जब इनके अपने फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और ये क्यों होते हैं? ताकि हम इन्हें अलग अलग टेंसेस में यूज कर पाए. इसका मतलब है हर एक टेंस अलग अलग वर्ब अपने साथ लेता है. ठीक है, तो मैं आपको प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल की वर्ब्स के बारे में बताती हूँ. तो आप ध्यान रखिएगा. पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब की. पहले हम बात करेंगे मुख्य एक्शन क्रिया की. तो इस टेंस की जो मेन वर्ब होती है, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लेकिन क्योंकि पहले हम देख रहे हैं कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म आती है, तो पहले आएगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में. फिर हम मूव करेंगे पास्ट सिंपल में. इसकी जो वर्ब फॉर्म है ना, वो होगी सेकेंड फॉर्म. जी हाँ, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है. मैंने मेन वर्ब लिखा नहीं है क्योंकि एक बार में काम चल जाएगा. एंड जब आप फ्यूचर में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको फ्यूचर में लगानी है अगेन वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल कौन सा है और पास्ट सिंपल कौन सा है. तो उसके लिए मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी, जो कि टेंस को बताएगी कि कौन सा टेंस है. ठीक है, पहले मेन वर्ब सीख लेते हैं, फिर आते हैं कंटिन्यूअस. मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंटिन्यूअस जितने भी टेंसेस होते हैं, उसमें एक ही मेन वर्ब होती है, जिसको कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म. वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म कहलाती है. लेकिन इन जनरल हम इसे किस नाम से जानते हैं? इन जनरल हम इसे आईएनजी के नाम से जानते हैं. एंड मैं आपको बताती हूँ, कंटिन्यूअस टेंस में आपको बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी होती है, क्योंकि इसमें देखो, कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आईएनजी है. अब आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैम हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंटिन्यूअस है? डोंट वरी, हेल्पिंग वर्ब वो आपको बता देंगे. अभी हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फिर आते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ. गाइस रिमेंबर, परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. आपको याद होगा हम लोगों ने बी वर्ब में पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बीन. इसका मतलब है कि अब हम परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, बीन पढ़ेंगे, गॉन पढ़ेंगे, डन पढ़ेंगे. इसका मतलब है थर्ड फॉर्म यूज होगी, है ना. और आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, सभी में थर्ड फॉर्म यूज होगी. सोच रहे होंगे मैम पता कैसे चलेगा? अगेन हम हेल्पिंग वर्ब लगा के पता कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये भी टेंस ऐसा है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस लगा है, तो यहाँ पर भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं. हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हो कि मैम वो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिर कैसे पता चलेगा? तो मैं बताना चाहूंगी कि वो भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाकर समझते हैं कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है. वी लर्न इट बाय हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है,
सबसे पहले हम लोग मेन वर्ब को एक बार और देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल की जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया है, जो कि इस टेंस में सब कुछ होती है, क्रिया ही सब कुछ होती है, तो फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट सिंपल की हमेशा सेकंड फॉर्म होती है। ये अकेला एक ऐसा टेंस है जो सेकंड फॉर्म लेता है, बाकी कोई टेंस सेकंड फॉर्म नहीं लेता है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। और फ्यूचर टेंस हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस में तीनों टेंसेस में आईएनजी आता है। वर्ब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या लगाएंगे, आईएनजी ही लगाना है। परफेक्ट टेंसेस में हमेशा थर्ड फॉर्म आना है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी आना है। अब टेंस पहचानते कैसे हैं भाई? टेंस को पहचानने के लिए ध्यान रखना है कि हम सिंपल टेंसेस को जब ध्यान से देखते हैं, सिंपल इंडेफिनिट जो कहते हैं हम लोग, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो नहीं लगती है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्चुअली सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती ही नहीं है। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाते हो, है ना, जब आप नॉट वाला सेंटेंस बनाते हो, या फिर जब आप क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हो, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव, तब आप लोग वर्ब लगाते हो। और मैं बताती हूँ तब आप कौन सी वर्ब लगाओगे। तब आप लगाएंगे डू या डज, ठीक है, डू या डज, ये दोनों में काम करेगी। ध्यान रखिएगा, आप जब सिंपल हेल्पिंग वर्ब लगाते ही नहीं है सिंपल सेंटेंस में, लेकिन जब आप इसका नॉट बनाते हैं या इसका क्वेश्चन बनाते हैं, तब आप लगाएंगे डू या डज। सेंटेंस से ज्यादा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब आते हैं सेकंड वर्ब की तरफ। ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है सिंपल सेंटेंस में। यहाँ पर भी सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन नॉट में लगता है डिड, क्वेश्चन में भी लगता है डिड। ध्यान रखेंगे इस चीज का, नॉट में भी लगता है डिड और क्वेश्चन में भी लगता है डिड, डिड ही लगता है, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दैट। बाकी सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है कि नॉट लगेगा तो डू एंड डज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये सेंटेंस बता देगा हम लोगों को, और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो भी डू एंड डज ही लगाएंगे। सेम डिड के साथ भी होगा, डिड भी सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, लेकिन जब हम नॉट बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम डिड का यूज करेंगे। लेकिन जब हम फ्यूचर में आते हैं, तो फ्यूचर में मेन वर्ब कौन सी हो गई? मेन वर्ब हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। और कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर सिंपल है? इसको पहचानने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या कोई मुझे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब बता सकता है चैट में? Can somebody tell me the future verb, helping verbs of future tense? कुछ लोग, Shall, can will. somebody guess it? यस मैम, शैल और विल होता है। Exactly, very good. तो यहाँ पर helping verb हम शुरू से लगा देते हैं, और वो होती है will या shall, ठीक है। will और shall के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो टेंस है वो है हमारा, वेरी गुड, ये है हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर का, है ना। देखिए, प्रेजेंट सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म थी, फ्यूचर सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है अफर्मेटिव में, तो समझ में आ जाता है कि डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं, ये है प्रेजेंट सिंपल। और विल और शैल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर सिंपल है। एक चीज और बताना चाहूंगी, हम लोग सिंगुलर फॉर्म पढ़ते हैं। सिंगुलर फॉर्म को आप लोग जानते हैं कि सिंगुलर फॉर्म वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। सिंगुलर फॉर्म जैसे गो का गोज, प्ले का प्लेज हो जाता है। ये जब हम पढ़ते हैं तो हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कहते हैं इसे एस या ईएस फॉर्म। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगती है, बताऊंगी कैसे लगती है। तो इसमें हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस लगाते हैं, बाकी आई एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं।
इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब केवल नॉट एंड क्वेश्चन में लगती है। पास्ट टेंस में जाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही मेन वर्ब है, और जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी आप अफर्मेटिव में नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे नेगेटिव और क्वेश्चन में। ये रूल है इसका, है ना, जो यहाँ रूल है वही इसमें रूल है। लेकिन जब आप फ्यूचर टेंस में जाते हैं तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना गाइस, वो होती है विल एंड शैल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम विल एंड शैल सभी सेंटेंसेस में लगेगा। बिल्कुल, अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव से लेकर क्वेश्चन तक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसलिए मैंने स्पेशल नहीं लिखा है, सभी में लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल टेंस की वर्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ये तीनों वर्ब जो हैं वो इस सिंपल टेंस के मेहमान होते हैं, इसी में लगाए जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना गाइस, हेल्पिंग वर्ब को मैं थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं बताती हूँ, इज, आप लोग जानते हैं इज, एम एंड आर। जी हाँ, इज एम आर के बाद हम लोग लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो पता चल जाता है कि अच्छा कंटिन्यूअस टेंस कौन सा वाला है, प्रेजेंट वाला है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आप लोग जानते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। हाँ भाई, इज एम आर का पास्ट तो वॉज एंड वर ही होता है, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। और जो फ्यूचर टेंस होता है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, बता देती हूँ मैं, विल बी और शैल बी। आप लोग जानते हैं इज एम आर का फ्यूचर होता है विल बी एंड शैल बी। जी हाँ, विल बी और शैल बी के बाद आईएनजी लगता है, विल और शैल नहीं आता है। विल बी और शैल बी पूरा आता है, तभी तो फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस अलग अलग पता चलेंगी, है ना। तो आईएनजी फॉर्म इनके बाद आएगी। हम हेल्पिंग वर्ब देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म से तो डिसाइड नहीं किया जा सकता है ना। आईएनजी फॉर्म से तो डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि कौन सा कंटिन्यूअस है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। जैसा कि हम जानते हैं परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, इसको एचवी भी कहते हैं। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है, जी हाँ, हैज और हैव। आपने अभी तक पोजीशन में पढ़ा था हैज और हैव, अब आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में दूसरा काम पढ़ेंगे इसका। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ हैज और हैव, जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो अगर हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा है तो समझ जाइए ये परफेक्ट टेंस है। अगर हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा है तो परफेक्ट प्रेजेंट है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी है तो पास्ट परफेक्ट है। और अगर विल हैव और शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी है तो समझ जाइए कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। थर्ड फॉर्म लगी है तब हम परफेक्ट टेंस तो पहचान सकते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म का काम होता है, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है, आप प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहे हो, पास्ट परफेक्ट में बात कर रहे हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट में बात कर रहे हो, ये चीज कौन समझा देता है हमें, हमारी हेल्पिंग वर्ब। हैज और हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड जो कि हैज और हैव का पास्ट होता है, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो वो पास्ट परफेक्ट है। और अगर विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी है तो वो फ्यूचर का परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूंगी लास्ट टेंस की। जी हाँ, इसको भी नहीं पहचान सकते, आईएनजी से नहीं पता चलता है ना। आईएनजी तो कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, उससे पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है कि सिंपल कंटिन्यूअस है। उससे ये भी पता नहीं चलता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ना तो कंटिन्यूअस समझ में आता है आईएनजी से, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। लेकिन उसकी हेल्पिंग वर्ब बता सकती है। अगर इज एम आर आईएनजी है तो समझ जाओ कंटिन्यूअस है, लेकिन
अगर हेल्पिंग वर्ब इजेमा नहीं है और हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब बोल रही हूं मैं, हैज बीन और हैव बीन। जी हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है, हैज बीन और हैव बीन है, ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ। अगर हैज बीन और हैव बीन है तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर इजेमार आईएनजी है तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, इजेमार आईएनजी है तो वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब वो क्यों है वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अभी तो टेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम बात करेंगे हैड बीन की। हैड बीन की, हैड बीन है देन आईएनजी है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इतना बड़ा टेंस का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, पता है आपको, क्योंकि नाम भी बड़ा है ना इसका। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर विल हैव बीन और शैल हैव बीन है, ये तो और बड़ा बनता है। विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन है और उसके बाद आईएनजी है तो समझ जाना कि कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप सारी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान से देखेंगे। आपको बताना चाहूंगी, ये जो मैंने टेंस का आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो बताया है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब चूज कर सकते हो, लेकिन आपको चूज इन्हीं में से करना होगा टेंस वाइज। ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ये किसी कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं। अगर आप सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं तो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल फॉलो करेंगे। अगर आप कंटिन्यूअस का बना रहे हैं तो कंटिन्यूअस का रूल फॉलो करेंगे, है ना। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की इंफॉर्मेशन है। और आप देखिए यहाँ पर जो मेन वर्ब्स आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ भाई इसकी जो मेन वर्ब्स है ना वो निश्चित हैं, या तो यही मेन वर्ब्स लगेंगी। नेगेटिव में आप अलग कर सकते हो, नेगेटिव में आपको ऑफ कोर्स क्या लगाना है, डू डस की फैमिली, डिड की फैमिली, है ना। कंटिन्यूअस में भी जब आप देखेंगे तो आपको आईएनजी फॉर्म ही दिखेगा हर जगह। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से भी चेंज हो जाएगी, नंबर इज एमआर में से, लेकिन थर्ड फॉर्म रहेगी परफेक्ट टेंस में, उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सी ध्यान से देखिए, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी ही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि वो कौन सा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वर्ब्स को समझ लेना है। ये तो हो गई वर्ब कौन सी टेंस में कौन सी लगेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा वर्ब से मिलवा देती हूँ। मेरे पास एक और